Hello and good afternoon, everyone. How are you all? I hope बढ़िया होंगे सभी बच्चे. So, students, in our previous class, we have discussed the consumer equilibrium in case of two commodities, right? We have discussed the two formulas. Let me recall the formulas for you. We have discussed that marginal utility of good X upon price of good X should be equal to marginal utility of Y upon PY. And we have also used one more equation, that was Px dot Qx, means price of good X into quantity of good X plus price of good Y into quantity of good Y should be equal to the money income of consumer. ये हमने पढ़ लिया था टू कमोडिटीज के केस में. अब जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो हमारा पेंडिंग था, उसको हम एक बार बुक से रीडिंग ले लेते हैं. हैव अ लुक एवरीवन. The law of DMU applies in case of either one commodity or one use of commodity. However, in real life, a consumer normally consumes more than one commodity. In such situations, law of equimarginal utility helps in optimum allocation of his income. ये कह रहे हैं the law of DMU. Law of DMU जो हमने पीछे पढ़ा था, that is generally applicable when we are consuming one unit, one commodity only. But in real life, we are consuming two or more than two commodities. तो वहां पे हमारा law of equimarginal utility apply होता है. Now, the law of equimarginal utility is also known as law of substitution. It is also known as law of maximum satisfaction, and it is also known as Gauss's second law. अब देखिए ये क्या कह रहे हैं इस law. As the law of equimarginal utility is based on law of DMU, all assumptions of the latter also applies to the former. यानी law of DMU से ही law of equimarginal utility आया है, तो लॉ ऑफ डीएमयू के सारे अजम्पशंस लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी पे एप्लीकेबल है. यानी कंटिन्यूअस कंजप्शन होना चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट का कंजप्शन होना चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पे भी एप्लीकेबल है. आगे ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं लेट अस नाउ डिस्कस इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर बाय टेकिंग टू गुड्स, गुड एक्स एंड गुड वाई. द सेम एनालिसिस कैन बी एक्सटेंडेड फॉर एनी नंबर ऑफ गुड्स. हम टू गुड्स की बात करेंगे, वी कैन टेक एनी नंबर ऑफ गुड्स, राइट. Now, in case of consumer equilibrium under single commodity, we assume that entire income was spent on single commodity. Now, a consumer want to allocate his money income between two goods to attain the equilibrium position. One commodity वाले टाइम तो हमने assume किया था कि वो सारी income एक से ही spend कर रहा है. इस बार वो दो goods है तो दो goods पे वो spend करेगा. अब ये law कहता है that consumer will get the total satisfaction when the MU of two commodities and their respective prices are equal. The ratio of MU, ये वाला sentence देखिए, ये sentence formula को explain कर रहा है. The ratio of MU of two commodities and their respective prices are equal. Means MU x upon PX is equals to MU y upon PY. ठीक है, ratio of marginal utility to price for these two commodities. And MU falls with consumption when consumption increases. यानी लॉ ऑफ डीएमयू जैसे यहाँ पे भी एमयू डिक्रीज होगा. अब देखिए कंडीशन नंबर 1 ये है, दिस वन, एमयू एक्स अपॉन पी एक्स शुड बी इक्वल टू एमयू वाई अपॉन पी वाई. अगर मैं इंडिविजुअली गुड एक्स और गुड वाई को पढ़ती तो मेरा वन कमोडिटी के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला रहता, आपने पढ़ा है पीछे. अब मैंने इसमें MUM को कॉमन लेके और फिर बाद में हटा ही दिया क्योंकि हम इसको वन अज्यूम कर लेंगे. तो मेरा जो मेन फॉर्मूला बनता है वो ये याद रखना, MUX upon PX should be equal to MUY upon PY, और we can also say MUX upon MUY should be equal to PX upon PY. और अगर प्राइस ऑफ गुड एक्स और प्राइस ऑफ गुड वाई सेम ली है आपने, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इफ वी हैव अज्यूम्ड PX as ₹1 and PY also as ₹1, तो इक्विलिब्रियम के टाइम पे MUX should be equal to MUY. ये हमने किया था लास्ट क्लास में. आगे देखिए बेटा, MU falls as consumption increases. यानी रूल वही है, जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ेगा वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाएगी. ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा, कंज्यूमर को उस कमोडिटी से मिलने वाला एडिशनल सेटिस्फेक्शन डिक्रीज होगा. अब आगे देखिए, finally it can be concluded that consumer in consumption of two goods will be at equilibrium when he spends his entire income on such a way that ratio of MU of two commodities and their prices are equal.
रेशियो इक्वल है और एमयू फॉल हो रहा है, वही फॉर्मूला रिपीट किया गया है. नाउ हैव अ लुक ऑन दिस टेबल. Suppose the total income of consumer is rupees 5. It means they have given you y is equals to rupees 5. आगे देखिए. Which is wish to spend on good x and good y. Both are priced at rupees 1. दोनों की price 1 है. So a consumer can buy maximum 5 units. Highest 5 ही purchase कर सकता है ना? क्यों? क्योंकि उसकी इनकम ही इतनी है. चलिए अब मुझे बताइए, यू एज अ राशनल कंज्यूमर कौन सी गुड पे पहला रुपी लगाएंगे, एक्स पे या वाई पे? जल्दी से हैंड रेज करना है. एक्स पे. एक्स पे क्यों? यूटिलिटी ज्यादा है. बिकॉज यूटिलिटी इज मोर. सेकेंड रुपी बताइए. वाई. वाई पे क्यों? क्योंकि यूटिलिटी यहाँ ज्यादा है. थर्ड रुपी बताइए. एक्स. 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 फोर्थ मैम कहीं भी लगा सकते हैं, वाई या यूटिलिटी है तो मैंने एक्स पे ही लगा दिया. फिफ्थ वाई. वाई. सिक्स एक्स. कहाँ से लाओगे? आर वी हैविंग 6 rupees? नो मैम. No. So we will stop over here. Check out the formula. MUX upon PX should be equal to MUY upon PY. MUX कितना है बेटा? 12 upon PX 1. MUY कितना है जहां आप स्टॉप हुए हो? 12 upon 1. क्या ये इक्वल आ रहे हैं? यस मैम. बिल्कुल. Yes, ma'am. दूसरी इक्वेशन सॉल्व करके देखिए. दूसरी मैंने आपको इक्वेशन बताई थी, ये नोट डाउन कर रही हूं आपके लिए. PX into QX plus PY into QY should be equal to Y. कितनी यूनिट्स लिया आपने इन टोटल गुड एक्स की? 4. 4 और 3. यहां स्टॉप हुए थे. 3 लिए ना? 1 2 3. तो 1 into 3. प्राइस है 1 और क्वांटिटी है 3. Y की कितनी यूनिट्स लिए? 2. प्राइस है 1 और हमने लिए 2 यूनिट्स. क्या ये प्लस करके आपकी मनी इनकम के इक्वल आ रहा है? बताइए. क्या क्वेश्चन में आपने देखा था दैट मनी इनकम ऑफ अ बायर इज रुपीज 5? तो ये इक्विलिब्रियम है. अब देखो इसको एक्सप्लेन किया हुआ है. डायग्राम नहीं करना है हमें. ये थ्योरेटिकली इसी चीज को बताया हुआ है कि कंज्यूमर ने पहले कौन सी ली, ठीक है, वो फर्स्ट कहाँ गया. ये लास्ट में बताया हुआ है दैट ही विल रिसीव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन व्हेन ही इज बाइंग 3 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एंड 2 यूनिट्स ऑफ गुड वाई. ठीक है, 3 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एंड 2 यूनिट्स ऑफ गुड वाई. अब ये कह रहे हैं कि यूटिलिटी एनालिसिस के कुछ लिमिटेशंस भी है. ये कह रहे हैं यूटिलिटी का कार्डिनल मेजरमेंट होना चाहिए, लेकिन कार्डिनल मेजरमेंट प्रॉपरली नहीं हो सकता. यूटिलिटी इज अ फीलिंग ऑफ माइंड. हमारे माइंड पे डिपेंड करता है कोई कमोडिटी हमें कितनी यूटिलिटी देगी, है ना. कोई फिक्स स्टैंडर्ड नहीं है यूटिलिटी को मेजर करने का. और भी कुछ लिमिटेशंस है बट वो आपके सिलेबस में नहीं है. अभी ऑर्डिनल यूटिलिटी बुक में स्टार्ट कर दिया है. मैं आपको पहले कुछ और चीजें करवा रही हूँ. देखिए ये क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको इसका आंसर बताना है. मैं आपको एक शेड्यूल बना के दे रही हूँ 2 कमोडिटीज का. इनकम भी बना रही हूँ. आप बताइए कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा. ठीक है. सपोज अ कंज्यूमर वाज हैविंग अ इनकम ऑफ रुपीज 8. यहाँ मैंने यूनिट्स लिख दिए. यहाँ मैं गुड एक्स और गुड वाई लिख रही हूँ. प्राइस है दोनों ही गुड्स की 1 एक्स की भी 1 और वाई की भी 1. यहाँ मैं गुड एक्स का MU लिख रही हूँ, मार्जिनल यूटिलिटी लिख रही हूँ, और यहाँ गुड वाई का मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है. आपको बताना है इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा 2 कमोडिटीज के केस में. ये कंज्यूमर की इनकम है. प्रॉपर मार्किंग करना, वो फर्स्ट यूनिट किसकी लेगा, सेकेंड किसकी लेगा, प्रॉपर.
Okay, your time starts now. Income of a buyer is rupees 8. Utilities are given to you. Utility of good X is also given, of Y is also given. You have to tell me the level of consumer equilibrium. So by solving the question, we can get that a consumer will spend his first rupee on good X, second on good X, third can be spent anywhere. If I spend rupees third over here, then my fourth rupee will be on good Y. Then fifth here, sixth here, seventh here, and eighth here. I am having total 8 rupees. Now I will have to check out the formula. MUX 14 upon PX 1. MUY 14 upon PY 1. Both are equal. Let's check out the second formula. अगर मैं second वाले की बात करूं, PX dot QX plus PY dot QY should be equal to money income. तो बिल्कुल ये भी equal आएगा because you have consumed 5 units of good X with the price of rupees 1 and 3 of good Y. So 5 into 1 plus 5 into 3, sorry, 3 into 1 will be equal to 8. That is the money income of consumer. तो ये सभी बच्चों को समझ आ गया होगा. अब बेटा 4 इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूँ जो एमसीक्यूज में आ सकती है, जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं की है. पहले 2 कमोडिटीज की बात करते हैं. You all know that consumer equilibrium is attained where these both are equal, right? A consumer is at equilibrium point when MUX upon PX is equals to MUY upon PY. What does this situation shows? अगर ये ऐसा है तो आपको क्या लग रहा है? कौन सी commodity ज्यादा satisfaction दे रही है? Good X or good Y? Good X. Good X. Now there can be a question in your examination that how will a consumer react if MUX upon PX is greater than MUY upon PY? अगर MUX upon PX MUY upon PY से ज्यादा है तो अब एक कंज्यूमर क्या करेगा? आप तो सिंपल ऑब्जर्वेशन कीजिए that good X is offering more satisfaction as compared to good Y. So consumer in this situation will increase the consumption of good X and will decrease the consumption of good Y. I hope सबको समझ आया होगा. ये X से मिलने वाला satisfaction है, ये Y से मिलने वाला satisfaction. My satisfaction from good X is more than that of good Y. Then how will I react? I will react in a way which will maximize my satisfaction. I will basically increase the consumption of good X and I will reduce the consumption of good Y. जब मैं ऐसा करूंगी तो धीरे धीरे मैं इक्विलिब्रियम पे आ जाऊंगी. कैसे? When I will increase the consumption of good X, my marginal utility from X will start falling. Decrease होगी. और जब मैं Y को कम कंजप्शन करूंगी तो Y की मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगी. ये डिक्रीज हो रहा है और ये इंक्रीज हो रहा है तो धीरे धीरे ये दोनों इक्वल आने लगेंगे और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ जाएगा. राइट. आई विल इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ गुड X जिससे मेरा MUX धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा. क्योंकि अभी ये ग्रेटर है तो मुझे MUX को डिक्रीज करना है. MUX को डिक्रीज करने के लिए मैं X का कंजप्शन बढ़ाती जाऊंगी और MUY इंक्रीज करना है तो X का Y का कंजप्शन कम करूंगी. जब आप कम कंज्यूम करोगे तो यूटिलिटी ऊपर की तरफ जाएगी. राइट. रिवर्स हो जाएगा. तो ये ऐसा करते करते तब तक करते रहेंगे जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाए. हमें तो कुछ भी याद नहीं करना है, हमें लॉजिकली चलना है. व्हाट इज द लॉजिक? आप तो ये ऑब्जर्व करिए, सिर्फ ऑब्जर्वेशन करिए. ऑब्जर्वेशन क्या रखनी है आपको? देखिए कि MUX upon PX is more, it means good X is offering more satisfaction. तो मुझे तो X को ज्यादा खरीदना है. X ज्यादा यानी डेफिनेटली Y कम. सिचुएशन 2 समझिए. If this is the situation, then how will a consumer react? If good Y is offering more satisfaction as compared to good X, then how will a consumer react? A consumer will increase the consumption of good Y and decrease the consumption of good X. Y का कंजप्शन तो वो बढ़ाता जाएगा और X का कंजप्शन वो कम करता जाएगा. जैसे जैसे वो Y का कंजप्शन बढ़ाएगा MUY डिक्रीज होगा और MUX बढ़ेगा. कब तक चलेगा? जब तक दोनों इक्वल नहीं आ जाते. Now this can also be a question.
How will a consumer react if MUX is more than PX? A consumer will purchase more of good X. आप देखिए satisfaction ज्यादा मिल रहा है, price कम है. Sacrifice is less and satisfaction is more. A consumer will definitely consume more of the commodity. When a consumer will increase the consumption, the MUX will reduce and it will become equal to PX. Price को तो adjust कर नहीं सकते, MU ही खुद को adjust करेगा, right? And the next situation, if MUX is more than PX, sorry, this time less than PX, then a consumer will decrease the consumption of good X because his satisfaction is less than his sacrifice. Satisfaction कम है as compared to sacrifice, so I will definitely reduce the consumption of commodity. Is it okay to everyone? क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ गया? यूटिलिटी एनालिसिस इस चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया. अब हमें करना है ऑर्डिनल अप्रोच. कार्डिनल अप्रोच इज कंप्लीटेड. नेक्स्ट पार्ट है आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. कौन सी अप्रोच है? ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. किसने दी थी? हिक्स ने. हिक्स ने कहा था कि कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन को नंबर में मेजर नहीं करता, वो सिर्फ रैंक देता है. तो क्या लिखा हुआ है देखिए. The real elaboration of indifference curves was made by J.R. Hicks and R.G.D. Allen, popularly known as Hicks and Allen. In 1934, they wrote an article, A Reconstruction of the Theory of Value, presenting the indifference curve analysis. उन्होंने एक आर्टिकल लिखा. Modern economists discarded the concept of cardinal measure of utility. They were of the opinion that utility is psychological phenomenon and it is next to impossible to measure the utility in absolute terms. According to them, a consumer can rank various combinations of goods and services in order of his preference. ये कह रहे हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो थी वो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट को समझ में नहीं आई. उन्होंने कहा कंज्यूमर कैन ओनली रैंक द सेटिस्फैक्शन. वो बता सकता है कि इस कमोडिटी से मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और उससे कम मिला था. वो मेजर नहीं कर पाएगा सेटिस्फैक्शन को इन नंबर्स. ठीक है, तो देखिए क्या इंडिकेट करते हैं मॉडर्न इकोनॉमिस्ट. If a consumer consumes 2 goods, apples and banana, then he can indicate whether he prefers apple over banana. उसको बनाना एप्पल से ज्यादा पसंद है या एप्पल बनाने से ज्यादा पसंद है, वो ये बता सकता है. या वो ये बता सकता है कि उसको दोनों एक जितनी पसंद है. एप्पल और बनाना दोनों को वो इक्वली प्रेफरेंस देता है, ये भी वो बता सकता है. ठीक है. दिस अप्रोच डज नॉट यूज द कार्डिनल वैल्यूज लाइक 1 2 3 4. ऐसी वैल्यूज यूज नहीं करता. Rather, it makes use of ordinal numbers like first, second, third, fourth, fifth. मैं बताऊंगी banana comes on number 1 for me, apple comes on number 2 for me. ऐसी कुछ चीजें बताऊंगी. ठीक है, आगे देखिए. It means if the consumer likes apple more than banana, then he will give first rank to apple and second to banana. बहुत सिंपल सी बात है. जब हम प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो इस अप्रोच का नाम होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. रैंक्स में जब हमने दे दिया तो इसको क्या कहते हैं? ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. ऑर्डिनल अप्रोच मोर रियलिस्टिक है कार्डिनल अप्रोच के कंपैरेटिवली. क्यों? क्योंकि इसमें हम ट्रू इमेज बताते हैं. अब ऑर्डिनल अप्रोच को पढ़ने के लिए हमें दो चीजें पढ़नी पड़ेगी, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन. बजट लाइन क्या होगी वो भी पढ़ेंगे, इंडिफरेंस कर्व क्या होगा, इंडिफरेंस सेट क्या होगा वो भी पढ़ेंगे. ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर देते हैं विद द मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व. बस आज आईसी का मीनिंग करेंगे, कल इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे. देखिए इनडिफरेंस का क्या मतलब है? जिसमें मुझे कोई डिफरेंस ना नजर आता. मैं अगर कहूंगी मेरे लिए क्लास के सभी बच्चे सेम हैं, इट मींस आई एम इनडिफरेंट. ठीक है, आई एम इनडिफरेंट, मुझे कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है इन अलग अलग बच्चों में. तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे. When a consumer consumes various goods and services, then there are some combinations which give him exactly same level of total satisfaction. काफी बंडल्स ऐसे होते हैं जो कंज्यूमर को टोटल सेटिस्फेक्शन एक जितना देते हैं. मैं कहूँ 4 किटकैट और 2 डेयरी मिल्क या 2 डेयरी मिल्क एंड 4 किटकैट, ये दोनों ही मुझे एक जितने ही पसंद आ रहे हैं. मुझे आप 4 डेयरी मिल्क और 2 किटकैट दे दो तो भी वही बात है, 2 किटकैट और 4 डेयरी मिल्क दे दो या 4 किटकैट और 2 डेयरी मिल्क दे दो तो भी वही बात है. इट मींस आई एम इनडिफरेंट अमंग दीज 2 कॉम्बिनेशंस.
जब मैं इन कॉम्बिनेशन को ग्राफ पे प्रेजेंट करूंगी तो ये बन जाएगा इंडिफरेंट कर्व। क्या बन जाएगा? इंडिफरेंस कर्व बन जाएगा। अब देखिए क्या लिखा हुआ है। Indifference curve refers to the graphical representation of various alternative combination of bundles of two goods among which the consumer is indifferent. ऐसे बंडल्स जिनमें कंज्यूमर इनडिफरेंट है, कंज्यूमर को डिफरेंस ही नहीं नजर आ रहा, यानी टू गुड्स के वो सभी कॉम्बिनेशंस जो एक कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं, उनको जब मैं ग्राफ पे प्रेजेंट करूंगी तो दैट ग्राफ विल बी ट्रीटेड एज इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, अ ग्राफ शोइंग वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स व्हिच गिव सेम सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। इसको इक्वल सेटिस्फेक्शन कर्व या आइसो यूटिलिटी कर्व भी कहा जाता है। ये कर्व बनाते टाइम हमें सिर्फ कंज्यूमर के दो गुड्स लेने, ओनली टू गुड्स, गुड एक्स एंड गुड वाई। ठीक है, जीरो नहीं कर सकते आप किसी भी चीज के कंजप्शन को। डिटेल में इसको विद टेबल एंड डायग्राम हम पढ़ेंगे कल, और कल हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कल की क्लास में पढ़ेंगे। चलिए फिर आज की क्लास यही एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी से कल।